Okay, chalo, now let us discuss paper 2. Okay, paper 2 of your paper 2 का paper discuss करेंगे. I'll just share the screen. Okay, fine. So this is paper 2. Comparatively easy and comparatively many kids have scored in paper 2. Paper 2 is very scoring. Just avoid silly mistakes like multiplication and division. Conversion में वहाँ पे mistake where your final answer is wrong. So even if your final answer is wrong, I have given marks. Only one mark or something I have deducted if your answer is wrong. But in your final exam, that may not be the case. Step marking पे please वो जरूरी है, but please don't guarantee कि आंसर गलत हुआ तो चलेगा. नहीं, मैंने इस बार मार्क्स दिया है because it is the first time you are attempting a 50 mark paper. Okay. चलो, first question, binary equivalent of hexadecimal A7. A मतलब क्या होता है? 10. ठीक है. 7 मतलब क्या होता है? 7. 10 का क्या है? 10 का क्या binary equivalent? आपको binary equivalent का ये आना चाहिए. 8 4 2 1 ऐसा है. तो 10 चाहिए तो क्या होगा? 8 पे 1 होगा, है ना? और किस पे 1 होगा? 2 पे 1 होगा. 8 + 2 10, बाकी सब 0. तो क्या हो गया 10 का इक्विवेलेंट? 1 0 1 0. 1 0 1 0 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन. और 7 क्या होगा? 7 is 4 + 2 6. 6 + 1 7, बाकी सब 0. तो ऑप्शन A is the answer. When power is switched off, information stored in RAM because it's volatile memory. Memory नहीं store होता है उसमें, temporary रहता है उसमें. तो RAM is lost. Okay, the answer is RAM. When one of the input of two inputs of XOR gate is high, it acts as a NAND gate. अब कुछ बच्चों ने NOT gate किया है. अरे भाई मैंने क्या लिखा है? One of the two inputs. NOT gate में 2 input है क्या? नहीं है. तो वहीं पे you should cancel out NOT. Okay, if it was one input मैंने ऐसे लिखा रहता तो then NOT gate is right. But 2 inputs बोला है, NOT gate को 2 input है क्या? नहीं. So it is not gate. Okay, it is NAND gate. Fine, समझा? Next, a demultiplexer accepts. अब XOR का क्रॉस चेक करना है तो प्लीज ट्रुथ टेबल यूज करो. ट्रुथ टेबल XOR का is there in chapter 2. Fine. And अभी मैं वो ट्रुथ टेबल का पेज नंबर नहीं बताऊंगी because you have to find, you need to open your textbook and see. सब कुछ बुक में है and it is very easy. It's not rocket science. ठीक है. Next, a demultiplexer accepts one input. इतना easy question था. Demultiplexer, one to many. Mux means, multiplexer means many to one. Perform the following conversations. Okay, ये वाला approximately same आपको मिल जाएगा 1.16 पे. Page number 1.16. Page number 1.16. The exercise 14. Exercise 14. You will get approximately all the numericals there. Page number 1.16. The exercise 14. ठीक है. मैं ऐसे रफली बता देती हूँ. 1101 बाइनरी टू डेसिमल. क्या करोगे? बाइनरी टू डेसिमल 1 क्या है? न्यूमेरिकल 1101. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. क्या करना है? 2⁻³ into 1, 2⁻² into 1, 2⁻1 into 1. ये वाला होगा 2⁻0 into 1. हो गया आपका आंसर. ठीक है, क्लियर है? जो भी कन्वर्जन्स है, जो ये क्वेश्चन 1B में है, 1BA इसमें जो भी है, ये पूरा आपको इधर मिल जाएगा. एक पेज नंबर 1.16 in मेरी पब्लिकेशन, उसमें सब है. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, hexadecimal to binary, and binary to decimal. All you will get. ठीक है, clear है? Second one is 101, which is a decimal number, not in binary. This is decimal 101.
कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 101 डिवाइडेड बाय 2, डबल मेथड यूज करना है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कितना है, कितने तो भी बच्चों ने 5 लिखा है, ये 5 है क्या डिवीजन? 101 डिवाइड बाय 2, डिवीजन करके देखो, 101 2 5 10, बचा क्या 1, इधर 0 डालोगे आप, समझ में आ रहा है? You will put 0, then the remainder is 1. So it is 5 quotient, remainder is 1. And you will go on doing it till the quotient is 0. You will go on doing it till the quotient is 0. So it is 50. Then you take 50 over here. 50 divided by 2, it is 25. Remainder 0. 25 divided by 2, it is 12. Again remainder 1. 12 divided by 2, it is 6. Remainder 0. 6 divided by 2, it is 3. Remainder 0. 3 divided by 2, quotient is 1. Remainder is 1. Again you will take this. यहाँ end नहीं करना है आपको. Again 1 divided by 2. What is the quotient? 0. Remainder 1. जब तक quotient 0 नहीं आता तब तक solve करना है. और कितने सारे बच्चों ने एरो डाला ही नहीं है, मैं क्या समझू ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, हाफ मार्क कट होगा या 1 मार्क भी कट होगा, क्योंकि आंसर है ही नहीं, मेथड कंप्लीट ही नहीं है। फ्रॉम नीचे टू ऊपर एरो होना चाहिए, ये सब चीजें होंगी तो ही फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं। एरो इज मिसिंग, यू विल लूज मार्क्स। ओके, नीचे से काउंट करना स्टार्ट करो। सो व्हाट इज द नंबर? 1 1 0 0 1 0 1 is the answer. And if there is a decimal है तो डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। डबल मेथड, पूरा ये मेथड पेज नंबर 1.16 में है, क्लियर है? सब मेथड्स, एक्सरसाइज 13 और एक्सरसाइज 14 किया तो सब कुछ आ जाएगा आपको। एक्सरसाइज 13 और एक्सरसाइज 14 इसमें सब कन्वर्जन है, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सब कुछ है। Why is NOR gate called a universal gate? NOR and NAND are universal gates because all the gates can be constructed using NOR gate. ठीक है? Explain with logic diagram. Explain आपको NOR explain नहीं करना था. You have to explain कि वो universal gate क्यों है. तो at least आपको 2 example तो भी करना पड़ेगा. The same question is there on page number 2.8. 2.8. ठीक है? तो आप नॉर से और गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो दिखाना है आपको। लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करके, गेट्स ड्रॉ करके, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। पेज नंबर 2.8 पे सब कुछ दिया गया है। सॉरी, नॉट पेज नंबर 2.8, 2.9 में। सो दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 2.9, ठीक है। नेक्स्ट, explain ALU and CU. What is ALU? Arithmetic logic unit. क्या क्या होता है उसमें? arithmetic operations होता है, addition, subtraction. Control unit, all the control signals are sent in the computer system. This is on, if you want the page number, I can give you the page number. It is on page number 7.2. Page number 7.2. Next. Explain the working of 1:4 DMUX. So simple. आपको सिर्फ DMUX draw करना था 1:4 का, and you are good to go. Okay. So 1:4 DMUX. If you want the page number, I will give you the page number. 1:4 DMUX is on page number 4.4. Page number 4.4 पे है ये 1:4. ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिक, y इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन पेपर में ये बार क्लियरली प्रिंटेड नहीं था, थोड़ा सा लाइट था। कुछ बच्चों ने A.B से सॉल्व किया है, मैंने मार्क्स दिए हैं क्योंकि वो प्रिंट थोड़ा सा लाइट आया है। जो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया है उसमें भी बार दिख रहा है बट इट्स वेरी लाइट,
तो कुछ बच्चों ने बार मिस किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके वजह से मैंने कोई मार्क्स कट नहीं किया। अगर आपने सॉल्व ठीक से किया है, आपने फॉर्मूले बराबर लगाया, मैंने मार्क्स फिर भी दिया है, फुल मार्क्स दिए हैं, ठीक है। अगर कोई गलती की है तो मार्क्स कट किया है, फाइन। सो या यू कैन, if you want I can just solve this for you. Okay, this one question 2a b, draw the logic diagram using gates. This is given on page number 2.41. आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। तो ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे ये बोलना है कि प्लीज ड्रॉ एंड और गेट्स प्रॉपर्ली। सबसे पहले तो वही बोलना है, एंड और गेट एक जैसे दिखते हैं कुछ बच्चों का, यू विल लूज मार्क्स बिकॉज द एग्जामिनर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैव यू ड्रॉन, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। फर्स्ट आपको ए और बी चाहिए, ठीक है, तो ए और बी दो लाइंस बना लीजिए। आपको ए बार चाहिए, ठीक है, और बी बार भी चाहिए, लेकिन बी बार एक साथ नहीं, आपको ए प्लस बी होल बार चाहिए, है ना, लेकिन ए बार चाहिए। तो ए बार को पहले ही इन्वर्टर लगा लो और वो भी लाइन रेडी करके रख दो, यहाँ पे लिखो ए बार, वो लाइन रेडी करके रख दो, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन किसका होता है, एंड गेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस मतलब आगे कहीं तो जाके मुझे और गेट लगाना पड़ेगा, और गेट मतलब एडिशन होता है ना, तो ये प्लस के लिए ये जो बीच का प्लस है ना, उसके लिए मैंने और गेट लगा दिया, ठीक है। ए प्लस बी होल बार मतलब नॉर गेट, ए प्लस बी होल बार, ए को ले लो बी को ले लो, आउटपुट होगा ए प्लस बी होल बार। हर जगह आपको आउटपुट लिखना है, हर जगह। इट इज मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी, a into b again and gate a into b, ये दोनों a into b और ये दोनों भी मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो वापस एंड गेट। अब मेरे पास जगह नहीं है, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर और गेट को दिया, तो ये मल्टीप्लाई होगा मतलब a प्लस बी इंटू ए बी, ठीक है, उसका आउटपुट जाएगा और गेट को। पेज नंबर 2.41 में दिया है। ये ऐसे वाले मुझे बहुत पसंद है बिकॉज बहुत स्कोरिंग होता है। चलो नेक्स्ट, कंपेयर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी? इट्स वेरी, प्राइमरी मेमोरी मीन्स समथिंग विच इज देयर इनसाइड द कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी इज जो बाहर से आप लगाते हो पेन ड्राइव वगैरह, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। आंसर इज ऑन पेज नंबर 7.7। इसका आंसर इज ऑन पेज नंबर 7.7। नेक्स्ट, simplify the following and draw the logic diagram also. This is on page number, I will tell you, this question ABC wala, page number 2.33. right? Yes Lakshmi, it's right, page number 2.21। यही है आपका आंसर, पेज नंबर 2.21। this one, simplify y is equal to ABC, this is on page number 2.21। and see, telling this because it will be easy for you to see। next, state and prove De Morgan's theorem। De Morgan's theorem कितने बार समझाया है क्लास में? पेज नंबर 2.5, De Morgan's theorems पेज नंबर 2.5। दोनों भी आपको लिखना है और प्रूव करना है। पहले थ्योरम देख लेते हैं। a plus b bar, if you break the bar, okay, if you break the bar, it is going, दोनों को मिलेगा बार, बार ब्रेक करोगे लेकिन बीच का जो ऑपरेशन है उसका उल्टा आएगा यहाँ। दिस इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, ए बी होल बार, ये बार को ब्रेक करना है तो दोनों को बार मिलेगा लेकिन बीच का जो सिंबल है उसका उल्टा होगा। एंड लॉजिकल एडिशन, पेज नंबर 2.5। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर? इट इज
a system in which many inputs can be converted into one output. Explain 4:1 multiplexer. As simple as that. इससे easy और कुछ नहीं हो सकता. Page number 4.2 is the answer. Page number 4.2. 4:1 mux. ठीक है. Next. पूरा सब कुछ explain करना है. Data input ये वो सब. Implement the following using logic expression using a multiplexer. A, B, C ये बहुत बहुत इजी है. ये फिर तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना है and you get full marks. Okay. Next, same question. Type of this question is on page number. Similar question is on page number 4.15. Page number 4.15. ठीक है. अब फंक्शन ऑफ ए बी सी है ना. मतलब कितने इनपुट्स हैं यहाँ पे. ए बी सी कितने इनपुट्स हैं. 3 इनपुट है. राइट. तो इतना आपको पता चल गया कि 3 इनपुट है. सो इट इज 3 इनपुट. 3 इनपुट के लिए कितने आपको सिलेक्ट लाइंस. इफ देयर आर 3 A B C 3 then you have to understand that select lines are 3. ठीक है. select lines 3. A B C दिया है. function of A B C 3 है. that means select lines are 3. ठीक है. how many inputs will I have? I have the formula 2 raised to n is equal to n. okay. 2 raised to 3 is equal to the number of inputs. 2 raised to 3 कितना है. 2 into 2 4. 4 into 2 8. that means I have 8 inputs. तो कौन सा मल्टीप्लेक्सर आएगा. कौन सा मल्टीप्लेक्सर आएगा. अगर 8 inputs है तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर. तो आपको 8:1 मक्स लिखना है. ठीक है. लॉजिक 0 का एक डंडा बनाना है. लॉजिक 1 का एक डंडा बनाना है. और जो भी नंबर दिया है ये देखो फंक्शन में समेशन में क्या क्या नंबर दिया है. 0 1 2 4 7. इधर होगा ना 1 2 3 4 5 6 7. 0 1 2 3 4 5 6 7. जितने भी ब्रैकेट के अंदर है उनको लॉजिक 1 देना है. बाकियों को लॉजिक 0 देना है. तो 0 को लॉजिक 1, 1 को लॉजिक 1, 2 को लॉजिक 1, 4 को लॉजिक 1, 7 को लॉजिक 1. बाकी सबको 0 0 0. बाकी सबको 0 कनेक्ट करना है. सिलेक्ट लाइंस देने हैं 3. ठीक है. A B C आउटपुट Y. This is how you do this. Is it okay? Convert the following. मैंने वो पेज नंबर बता दिया है. वो पेज नंबर में सभी कन्वर्जन्स हैं. You just have to follow the method. Whatever the page number which I told before, that वो पेज नंबर में that is 1.16 सभी है. You can just simply follow that. Okay. Next. Perform the following. Same thing. Any 10 या फिर कोई भी बाइनरी into hexadecimal. क्या करना है आपको. Any number into hexadecimal. क्या करोगे बताओ. एनी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल. सिंपल. इसको आपको 4 4 का ब्रैकेट बनाना है और उसका इक्विवेलेंट क्या है हेक्साडेसिमल वो करना है. बताती हूँ मैं. दिस इज क्वेश्चन 3 एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग. प्लीज आप क्वेश्चन नंबर्स करेक्ट लिखिए. 3BA 1011.101. इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. ब्रैकेट्स बनाइए. फ्रॉम द डेसिमल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट. 1 2 3 4. शुक्र है कि 4 का ब्रैकेट बन गया. अगर यहाँ पे ये 1 नहीं होता. 4 का ब्रैकेट बन रहा है क्या. नहीं. तो आप 0 ऐड करोगे. ठीक है. यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो जरूरत नहीं है. 1011 का इक्विवेलेंट क्या है हेक्साडेसिमल में. नंबर पहला देखो. 8 plus 2 plus 1. That means it is 11. है ना. तो 11 के लिए हेक्साडेसिमल में कौन सा नंबर है. B. So this is B. Next 101.
यहाँ पे 4 का ब्रैकेट बन रहा है क्या? 1 0 1 नहीं बन रहा, तो ऐड अ 0. 1 0 1 0, what is the equivalent? What is the equivalent of 1 0 1 0? 10. 10. 10 के लिए क्या है? 8. So the answer is 8. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट 85.75 इनटू बाइनरी. मैंने बताया बाइनरी के लिए डिवीजन करना पड़ता है पूरा, डबल डबल मेथड. नेम द वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर. इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आया, मतलब बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, बट 1 or 2 दे कुड नॉट इवन राइट दिस. इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट दे रही हूं मैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं. आउटपुट डिवाइसेस कौन से है? जिससे मुझे दिखता है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है. ठीक है. नेक्स्ट, what is the need of multiplexing? This question is there on, I will tell you, the page number is 4.4. need of multiplexing. ठीक है. जब एक आईसी पैकेज होता है ना, तो हर एक को अपन इनपुट नहीं देते बैठेंगे. इनपुट के लिए अलग 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 वायर. इसमें देखो कितने इनपुट्स है, सो वी कैन मेक इट मोर कॉम्पैक्ट. ठीक है. दैट इज वन ऑफ द मेजर नीड्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग. पेज नंबर 4.4 पे इसका पूरा आंसर है. Calculate 1011 minus 101. Now please use your common sense. ये 3 मार्क्स के लिए है. डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के लिए मार्क्स मिलेगा क्या? मुझे पता है 1 minus 1 is equal to 0. कुछ बच्चों ने डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन किया है and they're telling me मैम मेथड is not written. अरे मेथड नहीं लिखेंगे. This is exactly how it is asked in the board exam. मैं use this method ऐसे नहीं आएगा. There are kids who are telling me मैम मेथड नहीं लिखा है. तो इसके लिए 3 मार्क्स मिलता है क्या? 1011 minus 101, 1 minus 10, 101, इसके लिए मार्क्स मिलता है? नो, यू हैव टू यूज टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या है? जो सेकंड नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट? ये नंबर कौन सा है? इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 0 होगा. ओके, सो द नंबर इज 0101. इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. सब डिजिट्स को उल्टा कर दो. 1010. ये है वंस कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट कैसा बनेगा? +1, 1011. ठीक है. अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट को इधर ऐड करना है, तो ये हो गया. ये नंबर को हम डिलीट करेंगे और ये नंबर को ऐड करेंगे. 1011 ऐड 1 plus 1 0 कैरी 1, 1 plus 1 अगेन 0 कैरी 1, लेकिन +1 है तो यहाँ पे आएगा 1. ठीक है. नेक्स्ट 1 plus 0 plus 0 1, 1 plus 1 0 कैरी 1. ये 1 को हम डिस्कार्ड करते. द कैरी इज डिस्कार्डेड. व्हाट इज द आंसर? 0110. दिस इज द आंसर. ऐसा सॉल्व करना है. कोई लिखने नहीं वाला है यूज दिस टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, यूज दिस. डायरेक्ट थोड़ी मैं सिर्फ आंसर लिखे हैं लोगों ने, डायरेक्ट माइनस करके सिर्फ आंसर. यू विल नॉट गेट मार्क्स. फिर भी शायद मैंने आधा मार्क कुछ दिया होगा, आपको 0 मिलेगा in the exam. Okay, you have to use two's complement method. If you want it in the textbook, I can give you the page number of one such two's complement subtraction. Okay, you have to use two's complement. If you use one's complement method also, that also you can write, but direct subtraction नहीं करना है आपको. ठीक है. One's complement या two's complement you have to use. अब just give me a second. Page number 1.29. Page number 1.29. Subtract using two's complement method. Okay. You can use exercise 35. You can note down that. 1.29. Next, explain light pen, MICR, etc. All these are input devices. Page number 7.4 is the answer. Page number 7.1.
व्हाट इज MICR? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मतलब जो भी मैग्नेटिक बारकोड्स वगैरह होते हैं उसको हम स्कैन करके वो कोड या जो भी है फॉर इनपुट, एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, तो स्कैनर टाइप है वो, ठीक है। तो दैट ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस। लाइट पेन इज यूज्ड टू रीड। कंप्यूटर फंडामेंटल्स वीडियो जो मैंने बनाया उसमें इसका सबका फोटोग्राफ डाला है मैंने, देखना। स्कैनिंग के लिए आप सब मॉल्स वगैरह में जाते हो तो कैसे वो खरीद, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका वो स्कैन करते हैं बारकोड, है ना, बारकोड स्कैन करते हैं, तो उसके बाद दैट इज ऑल ऑप्टिकल स्कैनर एंड ऑल्सो इट्स अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। उसको एक्सप्लेन करना है, इट्स गिवन इन पेज नंबर 7.4। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज। Semiconductor memories is given on page number 7.6। पेज नंबर 7.6 कितने सारे हैं? रैम, रोम, EEPROM, EEPROM, PROM, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, सिंपली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें से रैम में अगर डेटा स्टोर करेंगे तो लाइट ऑफ होता है तो चला जाता है, उड़ जाता है। रोम में नहीं जाता, इट इज सेव्ड। ऑल दिस यू हैव टू राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डबल डबल मेथड। वही डेसिमल टू बाइनरी वाला, कोई भी डेसिमल नंबर दिया है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट लो, डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट लो, डिवाइड बाय 2, क्वोशिएंट लो, डिवाइड बाय 2। दिस इज डबल डबल मेथड जो मैंने बोर्ड पे करके दिखाया था, इसको आपको एग्जांपल यूज करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूज। सेम क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे किया 5A, सेम क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे करके दिखाया है। ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर A plus B into A dot B bar। फटाफट कर देंगे। लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्या क्या चाहिए हमको? A चाहिए, B चाहिए, ठीक है। पहले दो लाइंस बना देंगे, A चाहिए, B चाहिए। पहला क्या है? A plus B। A plus B मतलब और गेट होता है, A plus B। नेक्स्ट, A plus A dot B the whole bar, that means it's a NAND gate, right? What is the output of a NAND gate? AB bar। दोनों को मल्टीप्लाई किया है मतलब चाहिए हमको एक AND गेट, मिल गया आउटपुट। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, A plus B का मल्टीप्लीकेशन, A bar B, AB bar का मल्टीप्लीकेशन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। अगेन वेरी वेरी इजी, आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ भी मतलब इट्स वेरी इजी, दैट डजंट मीन यू राइट एनीथिंग, प्लीज बी स्पेसिफिक। So what are the types of printers? You have laser printer, you have dot matrix printer. Page number 7.4 again, types of printers। कुछ लोगों ने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, कलर प्रिंटर। हाँ, वो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट हम उसका बेसिक कैटेगरीज पूछा गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था पहले, सबसे पहले। अभी भी कोई कोई कंप्यूटर लैब्स में आई थिंक इट इज यूज्ड, साइड में होल 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 वाला पेपर यूज करते हैं उसमें, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी तो लेजर प्रिंटर्स यूज होता है। तो दोस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स यू हैव टू राइट। पेज नंबर 7.4। Prove the following identities। पहला वाला is on page number 2.15, page number 2.15, and second one is on page number 2.17। 2.15 2.17 पे ये दिया गया है। And the last one is explain types of bus। अभी ये भी it's a very easy क्वेश्चन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बस मतलब क्या होता है? कुछ तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना? क्या ट्रांसपोर्ट होगा? कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होगा। फाइन, सो इट इज, you can connect things like this and write in your own words। It is on page number 7.3। last question is on page number 7.3। okay, so it is a path जहां से आपका डेटा ट्रांसफर होते रहेगा प्रोसेसिंग यूनिट से बाकी के पेरिफेरल्स में, बाकी के जगह से प्रोसेसिंग यूनिट पे ट्रांसफर होते जाएगा। व्हाट आर द टाइप्स? डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। दीज आर द टाइप्स ऑफ बसेस, ठीक है। सो दिस हियर वी एंड द डिस्कशन ऑफ both the papers and we will be continuing with our
flip-flops, registers, and counters chapter tomorrow. We will start with the registers. Okay, thank you. Any doubts? कोई doubt है? Please No, feel ma'am. free to ask or message me. Okay, thank you.